Hariom, everyone. Greetings from Ritan Veshi. I can see Naina ji, Kalpana ji, Rajiv sir. Hariom. I would like to inform you all the participants. The session has been rescheduled for 6 p.m. After 1 hour, we are conducting the session. I apologies for inconvenience. Kindly rejoin us at 6 p.m. with the same link. Thank you. Okay, Falguni, thank you so much. Thank you for Thank the you. update. So nice of you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Take care. So we will reconnect at 6 o'clock. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Very good. Thank you so much. Thank you. स्कूल में हाँ घर पे नहीं पढ़ता तो क्या हुआ?
Hari Om. Dear all participants, I hope you all are doing very, very good. I request to all the participants kindly join with the videos on. I request to all the participants kindly join with the videos. Hari Om Meenal ji, Hari Om Pratik ji, Hari Om Shivam ji. Hari Om Pratik ji, Hari Om Manisha ji. So I request again to all the participants kindly join with the videos. So dear all lords and lords of greetings and namaskars from Ritanvishi Yoga and Foundation. Let's start today's session with Ganesh Stuti. Till everyone joins us, I request you all to let's start a Ganesh Stuti with me. Vakratund Mahakay Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Dev Sarvkaryeshu Sarvada. Dear all participants, after huge success of Navratri Bhajan Sandhya, we are all here today with an amazing podcast, and the topic of our podcast is Science of Lakshmi Puja. As we all know, the Diwali festive season is ahead, and we are here with this podcast where you all are going to get answer of your numerous queries regarding Lakshmi Pujan with scientific facts. Today, we are having two special guests who are going to have a marathon of discussions to overcome all your queries. Let me introduce to all our today's special guests. So our first guest is Dr. Rajesh Raj Guruji. As we all know Guruji, still I would like to quickly introduce him to all the new joiners. Dr. Rajesh Raj, Urf Yogi Raj, Urf Guruji has done his postdoctoral in parapsychology from Vienna University. He has done his PhD in human consciousness and yogic sciences. He is a gold medalist in his master's from Bihar School of Yoga. He has written 15 books and he has published more than 100 research papers on various yoga topics like Tantra Yoga, Prana Vidya, Hatha Yoga, Nada Yoga, Raj Yoga, and more. He has been served more than a decade in South Korea in Wonkwang University as a professor and established first of yoga university in South Korea. He has developed more than 500 meditation techniques and practices in his PhD thesis, and today he is between us as director and founder of Ritanvishi Yoga and Foundation. And we are very lucky to have you among us, Guruji. Kindly accept greetings of all our online joiners. Welcome, Guruji. I request you all to accept all of our gratitude and respect from all of our online joiners. Now I would like to introduce to our podcast chief guest, Professor Rajesh Kumar Agarwal. Professor Rajesh Kumar Agarwal ji has joined us. Welcome, sir. Professor Rajesh Kumar Agarwal ji is currently serving in NIT Kurukshetra as head of the department in computer science. With his huge bank of knowledge, Professor Agarwal has expertise in pattern recognition, machine learning, deep learning, soft computing, speech processing, and statistical modeling. He has successfully guided 7 research scholars in their PhD, and he has been supervised more than 35 master's dissertations. His more than 90 researches has been published in various Sci and Scopus journals. Dear sir, you are most welcome in Ritanvishi Yoga and Foundation's podcast. We are very lucky to have you among us as today's chief guest. Kindly accept our humble gratitude and greetings from all the online viewers and participants. Dear viewers, I'm feeling very excited that we are going to have a beautiful marathon on science and spirituality with both of our honorable guests, and I'm very sure that you also are having same feelings like me, feeling excited like me. Now I would like to request Professor Rajesh Raj Guruji to take the mic and take us ahead. Dear Guruji.
Namaskaram, my dear friends. आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मां लक्ष्मी की साधना, उपासना और उनका विज्ञान, द साइंस ऑफ लक्ष्मी पूजा. We all know about Goddess Lakshmi in various terminologies, in various ways to pray her, to adore her. We know the power of blessings of Goddess Lakshmi. हम सब विदित हैं किस प्रकार से हम मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं. मां लक्ष्मी के बारे में भिन्न भिन्न प्रथाएं, भिन्न भिन्न विचार भारतवर्ष में ही नहीं पूरे देश में सुप्रसिद्ध है. अलग अलग नामों से ही सही, अलग अलग रूपों से ही सही, यदि किसी शक्ति की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती है, सबसे ज्यादा जिन्हें प्रसिद्धि मिली है, जिसके सबसे ज्यादा उपासक पूरी दुनिया में है, वो मां भगवती लक्ष्मी ही है. आज हम लोग मां भगवती की साधना, उपासना और उनके पीछे छिपा हुआ विज्ञान आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे. जैसा कि फाल्गुनी जी ने बताया कि हमारे साथ विज्ञान के दिग्गज महारथी प्रोफेसर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं. मैं उनका सादर नमन करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी आध्यात्मिक विचारधारा को वैज्ञानिक शब्दावली से ही नहीं बल्कि गहरे में उतर के हम मां लक्ष्मी को किस प्रकार से समझें, उनको पाएं, अपने जन सुलभ भाषा प्रणाली में वो आपको बताएंगे. उन्होंने 2 दर्जन से भी ज्यादा किताबें लिखी है जिसके बारे में शायद फाल्गुनी ना बता पाई हो, और इनकी भाषा शैली इतनी सुलभ और जनमानस प्रिय है कि विज्ञान के प्रोफेसर होने के बावजूद इनके सारे ग्रंथ साधना परक हैं. योग और विज्ञान, स्वास्थ्य, आयुर्वेद से संबंधित है. आप वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि साधना परंपरा के भी धनी हैं. मां लक्ष्मी का ही नहीं बल्कि मां सरस्वती और मां पार्वती का भी आपको संपूर्ण आशीर्वाद है. तो आज मैं स्वयं बहुत आनंदित हूं कि आज मैं आप विद्वान के समक्ष बैठ करके उनका सानिध्य और उनके ज्ञान का लाभ केवल हमें नहीं बल्कि आप सबको मिलेगा. आई एम रियली वेरी ग्लैड टू से दैट he is not only the scientist but he also wrote on different important important knowledge of our basic lifestyle, the Ayurveda, the yoga and sadhana and various subjects whatever we need to learn. So today we are going to enjoy his words. I will try to ask him best questions. मैं आपकी तरफ से उनसे गहरे सवाल पूछूंगा. मैं अध्यात्म का पक्ष लेते हुए, शास्त्रीय पक्ष लेते हुए शास्त्र की बातें करूंगा और मां लक्ष्मी को शास्त्रों ने क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगा और जन सुलभ भाषा में, वैज्ञानिक शब्दावली में प्रोफेसर साहब उसको आपके समक्ष रखेंगे. मैं कोशिश करूंगा वो हर प्रश्न उठाने का जो प्रश्न आपके मन में मां लक्ष्मी के लिए उठते हैं, उनको जानने के लिए उठते हैं. और हम बहुत आविर्भूत हैं डॉक्टर साहब को यहाँ पाकर. मैं अब डॉक्टर साहब से 2 शब्द सुनना चाहूंगा इससे पहले कि हम लोग वार्तालाप प्रारंभ करें. डॉक्टर साहब. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थों की बात कही गई है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष.
यदि हम वैसे सोचें, अपने आप एनालिसिस करें, तो जीवन में 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पहला स्वास्थ्य और दूसरा संसाधन। संसाधनों में कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान तो मिनिमम आवश्यकताएँ हैं। हम धर्म संपन्न बन सकें, अर्थ संपन्न बन सकें, यह कामना हमारे शास्त्रों में की गई है। इसलिए एक दिन हर परंपरा के लिए रखा गया है। तो माता लक्ष्मी, जो कि वैभव की, जो कि ऐश्वर्य की, संपन्नता की देवी हैं, जो जिनके द्वारा हम रिसोर्सेस प्राप्त करते हैं, उनके पूजन का विधान वर्ष में एक दिन रखा गया है। और अगर भारतीय संस्कृति की बात सोचें, तो रावण की जब बात आती है तो उसको ये विज्ञान मालूम था। उसने सोने की लंका बनाई थी। उसके पास में बहुत तरह के रिसोर्सेज, वैभव, सब कुछ था। और अगर वैसे हम उड़ते हुए सुने, तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यह सब विज्ञान धीरे-धीरे कर लुप्त होता चला गया। हमारा देश धीरे-धीरे आक्रमणकारियों के चंगुल में फंस करके गरीब होता चला गया, दयनीय होता चला गया, भुखमरी आती चली गई, तरह-तरह की समस्याएं पैदा होती चली गई। तो मैं कामना करता हूं कि ये राष्ट्र फिर से इस बार सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बने, समृद्ध बने, शक्तिशाली बने, स्वस्थ बने, और हम सब उस विज्ञान को मिलकर के पुनर्जीवित कर सकें। ठीक है। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। हम लोग प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं लक्ष्मी सूक्त का 2 सूक्त पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद 2 सूक्त पढ़ने के पश्चात मैं मां लक्ष्मी का आध्यात्मिक पक्ष रखूंगा और प्रोफेसर साहब से विनती करूंगा कि साइंस इस मामले में क्या कहता है वो बताए। मैं देवी सूक्त की 2 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। ओम हिरण्यवर्णा सुवर्णरजस्रजा चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मम वह जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनी यस्यां हिरण्यविंध्यं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारथं मख्यां हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियं देवी मुपत्ये श्रीमर्मा देवी ऋजुषता। सृष्टि से पूर्व जब जगत अंधकार में था, जब आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस वक्त मां की इच्छा हुई, मां ने स्वरूप लिया। मां का अर्थ है जननी। मां ने सृष्टि किया, मां प्रकट हुई। मां 2 रूप में थी, एक अदृश्य जिसे हम श्री महाकाली भवानी मां के नाम से जानते हैं, और मां का वह रूप जो प्रकट हुआ, जो दृश्य गोचर हुआ,
जिसने स्वरूप लिया, जो आकृति हुई, वो मां लक्ष्मी हुई। और इदम अहम, ये मैं हूं या ये मेरा विस्तार है, इस बात का ज्ञान होना मां सरस्वती है। ये तीन देवियां जो इच्छा रूपा जो प्रकटी रूप में मां लक्ष्मी, कर्म रूपा, क्रिया रूपा जो प्रकट हुई, आकृत हुई, और ज्ञान रूप में महासरस्वती, जिसमें इदम अहम यानी ये मेरा विस्तार है, इसका भाव हुआ। ये मूल भावना है हमारी संस्कृति का। इसीलिए ये तीन देवियां मूल रूप से पूजी जाती है। समस्त देवी देवता इसके पश्चात होते हैं। मां लक्ष्मी यानी कि दृश्य जगत, मां लक्ष्मी जो हमें दिखाई सुनाई पड़ता है, जो अभिव्यक्त होता है, जो मैनिफेस्ट होता है, जिसका विस्तार होता है, जिसका संकुचन होता है, धीरे धीरे यह ऐश्वर्य इस सृष्टि का वैभव होता गया। अभी हम आपको ऐश्वर्य, वैभव और संपन्नता के गहरे दार्शनिक अर्थों को भी बताएंगे। ऐश्वर्य क्या है? ईशत्व ऐश्वर्य, वैभव विभव, इन शब्दों से आपको परिचय कराएंगे। इस प्रकाट्य जगत में मैं अब डॉक्टर साहब की ओर चलूंगा, प्रोफेसर अग्रवाल से प्रश्न पूछूंगा। मां लक्ष्मी का उद्भव आप विज्ञान की भाषा में किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे, जिसे हम सृष्टि मानते हैं? क्या उसका संबंध किसी भी प्रकार से बिग बैंग थ्योरी से है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से है, या इलेक्ट्रॉन का विस्तार से है? क्या माता लक्ष्मी का संबंध जिस तरह से शास्त्र दृश्य जगत को बताता है, क्या क्वांटम फिजिक्स में इस प्रकार की कोई बात विज्ञान खोज पाया है कि जो दृश्य है और जो अदृश्य है, जो दृश्यादृश्य है और दृश्य जो वैभव है, दृश्य जो ऐश्वर्य है, दृश्य जो समक्ष है, जो चाक्षुष है, यानी चक्षुओं द्वारा देखा जा सकता है। यानी चक्षु सिर्फ हमारी आंखें नहीं है जिसे अनुभव किया जा सकता है, सत्ताएं वो भी है जिसे अनुभव नहीं किया जा सकता, और सत्ताएं वो भी है जिसे अनुभव किया जा सकता है। अनुभव केवल हमारी इंद्रियों की बात नहीं है, यह वैज्ञानिकों की मशीन की बात नहीं है। अगर ये मशीन हजारों गुना शक्तिशाली हो जाए तो भी क्या हम अदृश्य जगत को देख सकेंगे जो दृश्य जगत दिखाई पड़ती है? आज हम प्रोफेसर अग्रवाल से पहला प्रश्न पूछना चाहते हैं कि वैज्ञानिक परिभाषा में मां लक्ष्मी को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? देखिए, वैज्ञानिक परिभाषा में जीवन जीने के जो संसाधन हैं वो मां लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होते हैं। इस रूप में हम मां लक्ष्मी की आवश्यकता सभी महसूस करते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को इस रूप में चाहिए होती है। मुख्य चीज ये है कि हम
चीजों का सदुपयोग करना सीख सकें। जो चीज हम सदुपयोग करते हैं वो बढ़ती चली जाती है, और जिस चीज का दुरुपयोग होता है वो चीज कम होती हुई चली जाती है। मैं थोड़ा सा यहाँ फिलोसफिकल पक्ष लेना चाह रहा हूँ। आचार्य शंकर की एक घटना याद आती है। एक बार आचार्य शंकर बहुत छोटे थे, सनातन धर्म की स्थापना के लिए एक अभियान चलाना चाहते थे, भिक्षा मांगने के लिए निकले। जब वो भिक्षा मांगने निकले तो सबसे पहले कुछ अमीर लोगों का घर आया, उन्होंने उनको भिक्षा नहीं दी। आगे बढ़े तो एक बूढ़ी माता का घर आया, बूढ़ी माता के घर में कुछ था नहीं। शंकराचार्य जी ने अपना प्रयोजन बताया कि मैं ऐसे ऐसे सनातन धर्म का चलाना चाहता हूँ, भिक्षा नहीं। बूढ़ी माता बड़ी परेशान हुई कि मेरे पास आज कुछ है नहीं, मैं आपको दे देती। लेकिन फिर उसने घर में ढूंढा तो उनको एक आंवला नजर आया, तो उन्होंने कहा आज मेरे घर में सिर्फ भोजन के लिए, मेरे करने के लिए ये एक आंवला ही है। तो वो आंवला उन्होंने आचार्य शंकर को दे दिया। आचार्य शंकर ने देखा कि बूढ़ी औरत है, खाने को कुछ है नहीं, ये आंवला था, वो भी मुझे दे दिया। उनकी आंखों में अश्रु आ गए और कहते हैं उन्होंने उस समय लक्ष्मी स्रोत का आह्वान किया, लक्ष्मी माता का आह्वान किया, और बूढ़ी माता के घर में स्वर्ण आंवलों की वर्षा होने लगी। लक्ष्मी माता जब देखती है कि उनकी संतानों को भोजन चाहिए, संसाधन चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, तो वो अपनी कृपा अपने बच्चों को बरसात देती हैं। सृष्टि का विधान ही इस तरह से बना हुआ है कि हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, और वो लक्ष्मी माता उसकी पूर्ति के लिए हमें जो शक्ति चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो सब हमें प्रदान करती है। तो मेरे ख्याल में इसी तरह की चीज हम अगर दार्शनिक रूप में कहें या वैज्ञानिक रूप में कहें तो वो समझी जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी संसाधन हमारे पास है, जो भी लक्ष्मी माता की कृपा हमारे पास है, उसको बड़े आदर के साथ, बड़े रेस्पेक्ट के साथ स्वीकार करें। उसका दोहन ना करें, उसको बर्बाद ना करें, उसको पूरी लगन के साथ हम सदुपयोग करें। वो बढ़ता चला जाएगा और हमें लक्ष्मी माता की कृपा मिलती चली जाएगी। एक उदाहरण अगर कहें तो मैं और दूं। बिल्कुल। हाँ जी, एक हमारे मित्र हैं, उनका नाम है श्री रोशन लाल शर्मा जी। वो रांची के पास एक जगह है खूंटी नाम की, वहाँ एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका कई सौ करोड़ का टर्नओवर है। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके पास दो कृपा, बड़ी कृपा है। 87 ईयर्स की एज में वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, 18 देशों में उनका व्यापार चलता है, अकेले घूमते हैं। मैंने कहा आपके अच्छे स्वास्थ्य का राज क्या है? दूसरी बात मैंने उनसे पूछी कि आपके पास लक्ष्मी माता की इतनी कृपा है, इसका राज क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया लक्ष्मी माता की कृपा का राज। कहने लगे कि जब मैं 13 साल का था तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो दूसरी माँ आई सुध, उन माँ ने मुझसे खूब काम कराया, मुझे खाने को नहीं दिया। तो मुझे लगा घर में मरने से अच्छा है कि कहीं भाग जाओ और कहीं जाके काम करो। तो किसी कंपनी में चले गए, वहां पर चौकीदारी का, झाड़ू लगाने का काम करने लगे। तो क्या हुआ, उस कंपनी में एक बार एक स्वामी जी आए जिनका नाम था हृदय नारायण योगी। तो कंपनी के मालिक ने रोशनलाल जी को कहा कि छोटे थे, बच्चे थे, 16 साल के थे, कि इन स्वामी जी की सेवा करिए, योगी जी की सेवा करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो शर्मा जी ने पूरे मन से, उस बच्चे ने पूरे मन से उस योगी जी का सेवा की। अब जो हृदय नारायण योगी जी थे, उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा इस बच्चे को मुझे दे दो। तो वो 3 साल के लिए उस बच्चे को अपने पास ले गए। वहां पे उन्होंने एक सिद्धांत दिया योगी जी ने कि जो भी कुछ आपको लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है, उसका दशांश आप सदुपयोग करिए, समाज के कल्याण के लिए, जरूरतों की, मजबूरों की सेवा के लिए।
और भारतीय संस्कृति का ये सूत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि त्याग के साथ आप उपभोग करिए। स्वामी जी ने, जो रोशनलाल शर्मा जी थे, उन्होंने योगी जी का वो सूत्र ग्रहण कर लिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर मुझे कुछ धन मिलेगा या कुछ लक्ष्मी माता की कृपा मिलेगी तो मैं उसका दशांश अवश्य सदुपयोग करूँ। वो योगी जी से 3 साल उनका संविधान पूरा हुआ, वापिस आए, वापिस आकर के एक कंपनी में काम करने लगे। तो जैसे ही शुभ संकल्प उनके मन में इस तरह के उभरे कि मैं दशांश समाज के लिए लगाऊंगा, कंपनी में उनका प्रमोशन होता चला गया, वो उस कंपनी के मैनेजर बनते चले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने उस कंपनी को छोड़ा और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कहते हैं कि हमने भगवान के खेत में बोया है, भगवान के साथ साझेदारी की है, और इस साझेदारी में हमें इतना लाभ हुआ कि हम एक मजदूर बनकर के किसी कंपनी में गए थे 14-15 साल की उम्र में, और आज हम कई सौ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप बना हुआ है। तो ये कुछ ऐसे व्यवहारिक सूत्र हैं। स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आध्यात्मिक सूत्रों पर वो चर्चा अधिक करें, और हम थोड़ा व्यवहारिक सूत्र बता रहे हैं। तो ये एक ऐसे व्यवहारिक सूत्र हैं जिसके जीवन में ये सूत्र आते हैं, जो इसको अपनाता है उनका जीवन लक्ष्मी माता की कृपा से भरता हुआ चला जाता है। स्वामी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत व्यवहारिक वे में तरीके से आपने बताया कि लक्ष्मी का होना किसे कहते हैं। प्रश्न मैंने बहुत दार्शनिक रूप में पूछा था, संभवतः कई श्रोतागण के भी समझ में ना आया हो। मैं और थोड़ा सरल होकर के नीचे आता हूं ताकि मैं आपके साथ बैठ सकूं। डॉक्टर साहब ने बताया कि सदाचार मां सरस्वती के आगमन का स्रोत है, और एक कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से परोपकार और सदाचार ये मां सरस्वती, मां लक्ष्मी के आगमन का मूल है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक दुविधा जो सामान्य लोगों के मन में अक्सर उठता है कि अमुक व्यक्ति धोखेधड़ी से बहुत पैसा बना रहे हैं, अमुक व्यक्ति बहुत सदाचार का या परोपकार का भाव नहीं रखते हैं, परंतु धन संपदा संपन्नता उनके यहाँ देखी जाती है, और ऐसा होने से मन बड़ा डवाडोल होता है। मेरे पास भी ऐसे प्रश्न पूछते हुए बहुत लोग आते हैं। तो प्रोफेसर साहब, मैं बस एक सरल भाषा में आपसे इसका उत्तर जानना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्न जिसमें कि मन विचलित हो जाता है और मन ये करता है कि फिर सारे शिष्ट आचरण को छोड़कर हम भी वैसे ही लोगों की तरह धंधा कारोबार में कुछ चोरी बेईमानी करके या किसी प्रकार से जो सामाजिक या आध्यात्मिक नियम है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उन सारे सदाचार का उल्लंघन करके यदि संपन्नता पाई जा सकती है तो क्यों ना हम लोग इस प्रकार से करें। माँ लक्ष्मी इसी प्रकार से यदि प्रसन्न होती है तो साम दाम दंड भेद आदि आदि। तो प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत सामयिक प्रश्न गुरुजी आपने किया, और ये बहुत आवश्यक भी है समाज के लिए यह प्रश्न का उत्तर जानना। जब बिना परिश्रम के धोखाधड़ी से, चोरी चकारी से कोई चीज आ रही है तो क्यों ना उसको ग्रहण किया जाए। हमारे शास्त्रों ने इसका उत्तर भली भांति दिया है और बहुत सुंदर रूप में दिया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी की 3 सवारी हैं।
अर्थात लक्ष्मी माता हमारे पास 3 प्रकार से आ सकती है। चयन हमारा है, हम बुरे कर्म करते हैं वो भी हमारा चयन है, हम अच्छे कर्म करते हैं वो भी हमारा चयन है। सिलेक्शन की जिम्मेदारी भगवान ने, सृष्टिकर्ता ने हमें दी है। परिणाम ऊपर वाले के हाथ में होता है, इसीलिए सोच समझ के कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ ये नहीं कि फल की चिंता न कर, इसका अर्थ ये है कि अगर एक बार आपने कर्म कर दिया तो फल पर आपका अधिकार नहीं है, फल आपके अधिकार में नहीं है, केवल कर्म पर ही आपका अधिकार है। तो हम लक्ष्मी माता को किस रूप में वर्ण करना चाहते हैं? लक्ष्मी माता उल्लू पर हमारे आ सकती हैं बैठ करके, लक्ष्मी माता हाथी पर बैठकर हमारे पास आ सकती हैं, लक्ष्मी माता कमल पर बैठ करके हमारे पास आ सकती हैं। हम किस रूप में लक्ष्मी माता का पूजन करना चाहते हैं, किस रूप में उनका वर्ण करना चाहते हैं? अच्छा हो कि हम सतोगुणी रूप, जो जिसको कमल कहा गया है, उस रूप में लक्ष्मी माता हमारे पास आएंगी। अगर कमल पर आएंगी तो हमारा जीवन पुष्पित पुलवित कमल के समान विकसित खिलता हुआ चला जाएगा। अगर हाथी पर बैठकर आएंगी तो हमारे परिवारों में अहंकार पैदा होगा। मैं कई बार हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हिमालय की गुफाओं में घूमता हूँ, वहां पर कई बार कुछ फैमिलीज आती हैं, बड़े बड़े अमीरों की फैमिलीज आती हैं, कहती हैं भाई साहब सब कुछ है परिवार में लेकिन शांति नहीं। मैंने कहा क्यों शांति क्यों नहीं? बच्चे काबू नहीं आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े आपस में, ये वो, क्यों? लक्ष्मी माता हाथी पर बैठ करके आई, धन का आपने सदुपयोग नहीं किया, उसको अहम के प्रदर्शन में लगा दिया, अपने स्वार्थ सिद्धि, अपने वैभव विलास और इन सब चीजों में उनको लगा दिया। एक बार मैं चप्पल पहने हुए था, दिल्ली में एक बड़ी फैमिली में गया, तो उन्होंने कहा आप प्रोफेसर हैं, उनके बेटे ने कहा 10वीं में पढ़ता था, मुझे तो लगता नहीं आप प्रोफेसर हैं, आपके पैर में तो 5000 का जूता होना चाहिए था, आपके पैर में 100 रुपए की चप्पल पड़ी है। तो मैं उसका प्रश्न सुन के दंग रह गया। मैंने कहा यार आप कैरियर की बात करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, है ना? कहते मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तो तरह तरह के परिवारों में दुर्व्यसन, दुर्गुण पनप रहे हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता हाथी पर बैठकर आ रही। रजोगुण प्रधान लक्ष्मी चाहिए, सतोगुण प्रधान लक्ष्मी चाहिए, या तमोगुण प्रधान लक्ष्मी चाहिए? तीसरी चीज, जब लक्ष्मी माता उल्लू पर बैठकर आती हैं तो परिवारों में मूढ़ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, बच्चे आलसी पड़े हैं। एक मैं परिवार में गया तो 18 साल का लड़का, उसके पास लैपटॉप रखा हुआ है, एप्पल का मोबाइल रखा हुआ है और वो पड़ा रहता है, लंबा चौड़ा अच्छा खासा। मैंने कहा क्या है? कहते हैं इसको डायबिटीज हो गई 18 साल की उम्र में। तो उठता ही नहीं है, वहीं उसका खाना आ जाता है, और नहीं आता तो जोमेटो से ऑर्डर आ जाता है। तो ये तमोगुण वाली लक्ष्मी चाहिए हमें, रजोगुण वाली लक्ष्मी चाहिए, या सतोगुण वाली लक्ष्मी चाहिए? ये चयन हमारा है। अगर हम गलत चयन कर लेंगे, धोखाधड़ी, लूट मार, तो आप उसका परिणाम देखिए, 10 साल बाद उसका परिणाम देखिए कि परिवारों में कैसे कैसे भयानक रोग उत्पन्न होते हैं, भयानक कुसंस्कार उत्पन्न होते हैं। लक्ष्मी माता को हमने इसलिए बुलाया था कि सुख शांति मिलेगी, और वहां तो दुख, कलेश, कलह, आपदाएं, रोग सब पनप गए। तो इसलिए भाई साहब, जो विवेकशील हैं, जिनके पास विवेक नहीं है, जिनके पास डिस्क्रिमिनेटिंग पावर नहीं है, जिनके पास प्रज्ञा या रितंभरा, जो आप संस्था चला रहे हैं, रितंभरा का अभाव है, वो किसी भी तरह से इन के इन प्रकारेण संसार के लोभ में आकर के, संसार के माया के जाल में आकर के, मेटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट के संपर्क में आकर के वो किसी भी तरह से धन को बटोरने का प्रयास करने लगते हैं, और उसके जब खतरनाक परिणाम हमारे सामने आते हैं तो वो बड़े भयावह होते हैं। तो इसलिए इस चीज से मैं सावधान करना चाहूंगा आप सभी को, हम सभी को, कि लक्ष्मी आए तो कमल के रूप में आए, जिससे, जिस आशा से हमने लक्ष्मी माता की कामना की थी कि परिवार सुखी, संपन्न, हेल्दी, हैप्पी रहेगा, वो चीज फलीभूत हो सके। लक्ष्मी माता आए और समस्याएं और दूसरी पैदा हो जाए, उसका भी कोई औचित्य नहीं बैठता। मैं अपनी बात को यहीं पर बोल रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल जो आज आपने उत्तर दिया है वो मुझे ऐसा मालूम होता है कि जन जन तक पहुंचा है,
सबके हृदय तक पहुंचा है, क्योंकि तमाम लोग ये प्रश्न बार बार पूछते हैं, समझना चाहते हैं, और आपने बड़ी ही सरलता से कि हाँ, लक्ष्मी तो उनको भी आएंगी जो धोखाधड़ी करेंगे, लक्ष्मी तो उनको भी आएंगी जो एन तेन प्रकारेण साम दाम दंड भेद लगा के लक्ष्मी को लाएंगे, लेकिन लक्ष्मी आएंगी किस रूप में, किस वाहन में आएंगी। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया, आप साधुवाद आपको हो, बहुत सुंदर। इसी चर्चा में इस प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में है, और बार बार ये प्रश्न वो पूछते हैं हमें। वो प्रश्न भी मैं आपके सामने रखूंगा कि आपने बताया कि लक्ष्मी क्या है और कैसे आती है। आपने किसी न रूप में संपन्नता और वैभव का एक अर्थ सदाचार के रूप में, शिष्टाचार के रूप में आपने बताया। आपने ये बताया कि किस वाहन से आती है, यानी कि किस प्रकार से उसे कैसे प्राप्त किया जाए, ये भी चर्चा हुई। अब कुछ लोग का प्रश्न है जो अक्सर पूछते हैं कि यदि शिष्टाचार और व्यवहारिक तरीके से हम लक्ष्मी की उपासना पूजा करें तो धैर्य और सब्र टूटने लगता है। ये अक्सर होता है कि दरिद्रता का सामना करना, मुश्किलों का सामना करना कई बार हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। हम सब चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी संपन्न हो। संभवतः संपन्नता के अर्थ को आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। जिस तरह से आपने शांति शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया, संपन्न क्या होता है? संपन्न हमारी मन की शांति होती है। और फिर भी लोग संसाधनों की जो हम लोग परिग्रह करते हैं उसको संपन्नता मानते हैं। यदि हमारे पास 4 बंगले हो, 6 गाड़ियां हो, हमारे पास सारे वो संसाधन हो जिससे कि हम जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे वैसे कर ले, और यदि हम उस अवस्था में नहीं है तो हम अधैर्य होते हैं, हमारा सब्र टूटता है, हम बार बार हमारे मन में ये भाव आता है कि असंतोष आता है, अनसेटिस्फैक्शन डेवलप होता है, और लगता है कैसे। मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि गुरुजी आप ना कुबेर साधना करा दो। मैंने 1-2 बार पूछ लिया, कुबेर मतलब क्या? मतलब कुबेर की तरह होना चाहते हो? कुबेर जिसको रावण हरा दिया था, उसको लंका से मार के भगा दिया था, वो वाला कुबेर बनना चाहते हो? नहीं, कुबेर की साधना, कोई गंधर्व साधना करा दो। क्यों भाई? कि इतनी संपत्ति, अकूत संपत्ति, भाई क्या करोगे पैसे का इतना? चलो रहने के लिए घर हो गया, एक ही घर में रहोगे, गाड़ी हो गई, चावल सोने का तो नहीं खाओगे, चावल जैसे लोग खाते वही चावल खाओगे, रोटी भी हीरे मोती का तो खाओगे नहीं, वही रोटी खाओगे। सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस समाज में, इस पूंजीवादी सोच में किसी न किसी रूप से प्रोफेसर साहब एक थॉट आ गया, अकूत संपदा, मतलब असीमित धन। नहीं पता उस धन का क्या करना है, अधिकांशतः लोग को पता नहीं है। ये तो आप बता रहे कि हम परोपकार करें, 10 पैसे में 4 पैसे लोगों की हेल्प के लिए लगा दें, पर मान लीजिए उतने संस्कार नहीं है, उतने भीतर वैसा संस्कार अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन एक जो ये थॉट प्रोफेसर साहब आ गया लोगों के अंदर कि बस अकूत संपदा हो, अनंत पैसे हो, और पता नहीं उसका क्या करेंगे, और वो जब तक नहीं आ रहा है भीतर, नहीं अपने आपके पास आ रहा है,
तब तक बहुत बेसब्री है। आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कि हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए। आप उससे संतुष्ट नहीं है कि आपको जो मिला है वो लाखों करोड़ों को भी नहीं मिला है। उससे कोई संतोष नहीं है, कोई धैर्य नहीं है। ऐसे स्थिति में जब लोग परेशान हैं, अपर मिडिल क्लास खासकर, अपर मिडिल क्लास वालों को आप महालक्ष्मी की वैभव और संपन्नता को अपनी सरल भाषा में किस प्रकार से समझाएंगे प्रोफेसर साहब? धन्यवाद गुरुजी, अच्छा प्रश्न है। इस विषय में मुझे एक दोहा याद आता है जो बड़ा सही कहा गया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कि मुझे आप इतना दे दीजिए जिससे मेरे परिवार का भी पालन पोषण हो जाए, और मेरे पास में अगर कोई साधु मेहमान अतिथि आते हैं तो मैं उनकी भी सेवा कर सकूं। ये भी एक तरह की बीमारी लग जाती है, नशा हो जाता है जो बढ़ता चला जाता है। उसे कहते हैं कि 99 के फेर में पड़ गया बंदा, बढ़ता ही चला जाए, पैसा बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही ये भी नशा है प्रोफेसर साहब? ये भी अच्छा। एक ग्रंथि बन जाती है या नशा हो जाता है जी। कि भाई पैसा मेरा बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला। जबकि अगर हम वैसे विचार करें तो संसाधन तो सीमित हैं। अगर हम अपने लिए बहुत वैभव इकट्ठा करते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का हम रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। उनको रहने के लिए अगर जगह नहीं मिल पाएगी, उनके उनके जीवन संसाधन के लिए कुछ उनका वो नहीं चल पाएगा, काम नहीं चल पाएगा, तो फिर क्या होगा इससे समाज में? वो लोग हंग्री होंगे तो एंग्री होंगे, है ना? हंग्री होंगे, एंग्री होंगे तो उनका गुस्सा फूटेगा, तो फिर समाज में लूट-पाट, मार-काट मचेगी। इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने का भारतीय संस्कृति विधान बनाती है। वो कहती है अपरिग्रह का जीवन जीजिए। जितनी आपकी आवश्यकता है उतना आप इकट्ठा करिए, नहीं तो ग्रंथि बन जाएगी। आप आज 2 कपड़ों से काम चला रहे हैं, कल 10 कपड़े, परसों 20 कपड़े, और एक दिन ऐसे ही आ जाता है घर में कि जो काम की चीज़ है, काम का कपड़ा है, वो मिलता ही नहीं है, और दुनिया भर के कपड़े इकट्ठे हुए पड़े हैं, दुनिया भर के संसाधन इकट्ठे पड़े हुए हैं। उन संसाधनों के बोझ के नीचे आदमी दबता चला जा रहा है। ऐसी अकूत संपदा का क्या लाभ? इससे अच्छा हम खुशहाल जीवन जीने के लिए दूसरों की मदद का रास्ता अपनाएं, नैतिक दायित्व का पालन करें। जैसे एक घटना आती है कि एक बार विदेश में जो है एक चोरी की घटना हुई, तो जज के पास केस आया, तो उसने बताया लड़के ने कि मैंने जैसा चोरी तो की है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन बहुत मजबूरी में की है। मेरी माँ बीमार थी और मुझे उसके लिए ब्रेड की जरूरत थी, उसको दवा खिलाने से पहले डॉक्टर ने कहा था कि कुछ खिला देना, तो मेरे पास घर में कुछ था नहीं खाने के लिए, अगर दवा ना खिलाता तो मर जाती, तो मैंने इसलिए ब्रेड चुरा ली ब्रेड वाले के यहाँ से। तो उसने कहा तुमने क्या लोगों से कहा नहीं कि मेरी माँ ऐसे ऐसे भूखी है और ऐसे ऐसे जो है उसको ब्रेड की जरूरत है? कहा मैंने इनसे कहा, इनसे कहा, उनसे कहा। तो जज साहब की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने उन सब लोगों को बुलाया, कहा कि दोषी ये नहीं है, दोषी तुम लोग हो। तुम्हारे पास इतना संसाधन था, इतना सब कुछ था, लेकिन तुम्हारी संवेदना नहीं फूटी और तुमने इसको चोरी करने के लिए मजबूर किया इस व्यक्ति को। तुम केवल अपने वैभव विलास, अपनी साधन संपन्नता की बात करते हो। तो जज ने सब पे फाइन ठोका, उन लोगों पे जिनके पास गया था। जज ने अपने ऊपर भी फाइन ठोका। उसने कहा कि मैं भी दोषी हूँ, मैं भी उसी समाज से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लोग संवेदनहीन रहते हैं। तो सुख का स्रोत व्यक्ति धन में ढूंढता है, समस्या सबसे बड़ी समाज की ये है। जबकि सुख का जो स्रोत है वो अंदर है, वो मानवीय संवेदना के पर निर्भर करता है। अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया है, आपके अंदर त्याग है, ममता है, प्रेम है, तो आप अंदर से संतुष्ट रहेंगे, अंदर से आपके सुख का स्रोत फूटता रहेगा। आप जो सेंसेस प्लेजर्स हैं या जो दूसरे प्लेजर्स हैं
उन खिलौनों से बचे रहेंगे। आज घर में कोई चीज आ जाए, खिलौना आ जाए, कुछ और चीज आ जाए, कोई कार आ जाए, कितने दिन उसका सुख होता है? 15 दिन, 20 दिन, महीना भर। फिर लगता है यार इससे बड़ी गाड़ी आ जाती, इससे बड़ा मकान हो जाता है, इससे बड़ा ये हो जाता। तो ये जो ग्रंथि है या ये जो धारणा है, इससे हमें निकलना पड़ेगा। तभी एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है, तभी एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सकता है, तभी हमारे समाज में वास्तव में सुख शांति पैदा हो सकती है। जब बात चली रही है तो मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। नरेंद्र एक 20 साल का बालक था, उसके घर में खाने को नहीं था, बहनें भूखी थी। अपने गुरु के पास जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, कहते हैं मेरे लिए एक रोजगार का इंतजाम कर दीजिए, नौकरी का इंतजाम कर दीजिए। आपकी तो बात माँ काली सुनती है, आप उनके पास जाइए, उनसे प्रार्थना करिए मेरे लिए कि मैं 3 दिन से घर में खाने को एक दाना नहीं है। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, सब संसाधन खत्म हो गए थे घर के। तो गुरु कहते हैं कि बेटा जा, तू माँ से मांग ले, और जो तू मांगेगा आज माँ से वो तुझे मिलेगा। नरेंद्र बड़े खुश, गुरु ने आश्वासन दे दिया, अब तो मैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें माँ से मांगूंगा। जैसे ही माँ काली के पास जाते हैं, तुरंत एक फटकार उनको पड़ती है। तो स्वार्थी हो क्या है नरेंद्र? तो अपने लिए मांगने आया है धन वैभव? तुझे भारत की लाखों माताएं भूखी नहीं दिखाई देती? तुझे भारत की लाखों बहनें भूखी नहीं दिखाई देती? तुरंत नरेंद्र पलट जाते हैं, उनका संपर्क डिविनिटी से हो जाता है, और वो कहते हैं कि माँ मुझे ज्ञान देना, मुझे त्याग देना, मुझे ऐसा साहस देना कि मैं भारत की लाखों माताओं की भूख मिटा सकूं, मैं लाखों बहनों का दुख दूर कर सकूं। तो वो करुणा, वो संवेदना जब उनकी उभरी, तो वो नरेंद्र से विवेकानंद बनते हुए चले गए। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो शास्त्र है, वो तेन त्यक्तेन भुंजिता की बात करता है कि आप त्याग के साथ भोग करिए। उससे क्या होगा? आपका जो भोग में असीमित वो है, वो हट जाएगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर बड़ा व्यवहारिक है, मैं देना चाह रहा हूँ। मेरी बेटी उस समय 3-4 साल की थी, उसको निमोनिया की प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों ने कहा था ठंडी चीजें नहीं देनी। तो हमारे मोहल्ले में आइसक्रीम वाला, एनआईटी कुरुक्षेत्र कैंपस में आइसक्रीम वाला आता था गर्मी में बेचने। तो उसे बड़ी मुश्किल से हम, जब आइसक्रीम वाला आता था तो एक कमरे में बंद करके दुबका देते थे कि वो आइसक्रीम वाले को ना देखे। तो एक दिन क्या हुआ, आइसक्रीम वाला तो चला गया, 1 घंटे बाद वो बाहर आई और मैंने जो दृश्य देखा तो मैं बड़ा परेशान। जो बच्चे आइसक्रीम खा के आइसक्रीम के दोने होते हैं, उसने वो उठाए और उन्हें चाटना शुरू कर दिया, उन दोनों को। तो मैंने कहा अब क्या करूं मैं, इसका बाहर घूमना तो बंद नहीं कर सकता, इसको ये आदत कैसे छुड़वाऊं? तो फिर मैं उस कहने लगी पापा आइसक्रीम मुझे चाहिए। अब नहीं थी तो ये चाटने लगी आइसक्रीम के दोने बचे हुए सड़क पे पड़े हुए। तो मैं आइसक्रीम वाले के पास गया, आइसक्रीम वाले के पास गया, उससे कहा कि 5 आइसक्रीम दे दो। उसने दे दी 5 आइसक्रीम। बेटी खुश हो गई, कहती आज तो मजा आ गया, 1 की बजाय 5 मिलेंगी। मैं उसको लेकर के वहाँ मेस वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, वहां पे गया। मैंने कहा देख, ये तेरे जैसे बच्चे हैं ना, ये आइसक्रीम नहीं खरीद सकते, तो ऐसा कर 1 आइसक्रीम अपने पास रख ले और ये 4 आइसक्रीम इनको दे दे। तो उसने एक एक करके 4 आइसक्रीम उन आइसक्रीम बच्चों को दे दी। तो बच्चे बड़े खुश हुए आइसक्रीम पाके, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो फिर क्या हुआ, फाइनली एक बच्चा और आ गया, उसने कहा दीदी हमें भी आइसक्रीम दीजिए। तो मैंने उससे कहा तुझे बेटा कल मिल जाएगी आइसक्रीम, अपनी बेटी को कहा तो इसे भी दे दे। तो फिर उसने जो है वो आइसक्रीम अपने वाली जो थी वो भी उसको दे दी, और कहने लगे पापा कोई बात नहीं मैं कल ले लूंगी। तो मुझे बड़ा अच्छा सूत्र हाथ लगा, मैंने कहा तो मजा आ गया। तो फिर वो क्या करती, रोज आइसक्रीम वालों से आइसक्रीम खरीदती, 4-5 आइसक्रीम खरीदती और मैं उसको लेके जाता और वहां मेस वर्कर्स के बच्चों को बांट, खुद नहीं खाती। आज भी वो ऐसी करती है, बहुत सारी टॉफियां बिस्कुट्स लेती है और बच्चों में बांट देती है, खुद नहीं खाती। तो कहां पर जाकर हम रुकेंगे, कहां पर जाकर हमारी तमन्नाएं पूरी होंगी? अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो वासनाओं का कोई अंत नहीं है, तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है, अहंकार का कोई अंत नहीं है, और ये हमें, हमारे परिवार और हमारे समाज और राष्ट्र सबको लेके डूब जाएगा। तो इसलिए
चीजों का हम सही सदुपयोग करना सीखें, चीजों की वास्तविकताओं को जाने, अपना आत्मनिरीक्षण करें कि हमें कितनी हमारी आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उसी हिसाब से चीजों को एकत्र करें और मानवीय जो सद्गुण हैं उनको भी साथ साथ अपनी पूंजी बनाएं कि वो भी एक प्रकार की हमारी पूंजी है, वो भी एक प्रकार का हमारा बैंक बैलेंस है। एक बार एक बहुत अमीर आदमी थे, वो हमारे पास आए, कहने लगे हमें डिप्रेशन है, हमें बहुत अशांति है। हमने सब साइकियाट्रिस्टों को दिखा लिया, बड़े बड़े साइकियाट्रिस्टों को। तो मैंने कहा पता है इसका स्रोत कारण क्या है? आदमी के अंदर अशांति क्यों होती है, दुख क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि आपके पास सब कुछ है? तो मैंने बताया कि आपके पुण्य समाप्त हो गए, पुण्यों की पूंजी समाप्त हो गई आप, और पापों की पूंजी प्रकट हो रही है, इसलिए आप दुखी हैं, डिप्रेशन में। तो आप ऐसा करिए, अपने दुख थोड़ी दिन के लिए भूल जाइए, 1 साल के लिए, और दूसरों के को जो दुखी मिले उसकी मदद करना शुरू कर, उस पैसे को वहां लगाना शुरू कर दिए। 1 साल बाद वो आए, कहने लगे आपने बड़ा सुंदर सूत्र दिया था, अब मेरे पास पुण्यों की पूंजी है, मैं बड़ा खुशहाल हूँ। मैं इतनी इतनी भारी भारी एंटी डिप्रेसेंट खा रहा था और उससे मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। साइकियाट्रिस्ट आज वो, साइकियाट्रिस्ट आज वो, हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स के उन्होंने मुझे पर्चे दिखाए जो पद्मश्री अवार्डेड थे, कि मैंने सबके पास हुआ है। तो जब मानव को ये पता लग जाएगा कि सुख का असली स्रोत क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि इंसान को पैसा नहीं चाहिए, जीवन यापन के लिए सब कुछ चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी चाहिए, लेकिन साथ साथ एक उस पर नियंत्रण रखना, एक अंकुश रखना भी जरूरी है, जिससे समाज की व्यवस्थाएं सभी सही चल सकें और हमारे जीवन की व्यवस्था भी सही चल सके। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रोफेसर साहब, आपने बहुत जटिल समस्या का आज आपने एक बहुत बेहतरीन समाधान नहीं, एक सूत्र दिया। देखो मित्रों, ये सूत्र गंभीर है आज जो चर्चा में बाहर निकल के आया है, कि जिस बेसब्री का, जिस अधैर्य का मैंने प्रश्न किया था, उसका एक कुंजी, एक स्रोत, एक उत्तर निकल के आया, और वो है संवेदना। इस प्रश्न का उत्तर यदि मैं एक वर्ड में कहूं तो संवेदना। संवेदना आपके अधैर्य को, आपके इम्पेशंस को, जो आपके अंदर में अकूत संपदा पाने का जो अधैर्य है, जो पागलपन है, जो पैसे की दीवानगी है, जो नशा है, उस नशा का जो समाधान आज प्रोफेसर साहब ने बड़ी सरल भाषा में 3-4 कहानियों के माध्यम से जो उन्होंने बताया, वो वास्तव में मर्मस्पर्शी है, हृदय को छू लेने वाला है। विशेषकर आपकी बिटिया की कहानी, जिसने आपने बांटना सिखाया, किस प्रकार आदमी की, इंसान का लालच किस प्रकार से वैष्णव भाव में बदल जाता है। और देखिए ना, मजे की बात, मां लक्ष्मी विष्णु को पसंद करती है। क्या है वैष्णव? वैष्णव होना क्या है? लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास ही रुकती है, लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु की ही है। और वैष्णव होना क्या है? मैं इसको गा के सुनाता हूं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जानी रे। पर दुखे उपकार करे तो, पर दुखे उपकार करे तो, मन अभिमान
रे वैष्णव जन। तो वैष्णव जन की परिभाषा क्या है? जो दूसरों की पीड़ा को समझे, वही वैष्णव जन है। मां लक्ष्मी को विष्णु ही प्रसन्न है। आपके मन में संवेदना है, दूसरों के उपकार के लिए भाव है, आपको मां लक्ष्मी पसंद करती है। और यहाँ से चले थे वहीं आ गए। आचार्य शंकर से चले थे कि उन्होंने जो है माँ लक्ष्मी का आह्वान किया, लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपना धन, अपना आंवला अर्पित किया। तो फिर वहाँ पे ये भगवान विष्णु वाला जो आपने कॉन्सेप्ट दिया, ये वाकई में फिर वहीं पे आ गया कि संसार के पालन पोषण के लिए माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की अर्धांगिनी बन करके रही। जी, संपन्नता का अर्थ क्या है? आज एक और बात प्रोफेसर साहब ने बहुत सरल भाषा में इसका उत्तर दिया कि संपन्नता विलासिता नहीं है, परिग्रह नहीं है। संपन्नता की वो बहुत ही सरल भाषा में कहें तो मन की शांति है। प्रोफेसर साहब ने वो एंटी डिप्रेशन वाले की कहानी भी बताई कि किस प्रकार से विषाद में, अशांति में व्याप्त कोई व्यक्ति प्रोफेसर साहब के पास जाता है और प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आप जाकर के दूसरों की मदद कीजिए। संपन्नता यही है। संपन्नता उस शांति में है जिसमें विषाद नहीं है। संपन्नता उस शांति में है जिसमें उन्माद नहीं है। संपन्नता उस शांति में है जिसमें प्रमाद नहीं है। तो संपन्नता क्या चीज है? ये किस प्रकार का, जैसे गीता में अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञा का भाषा, ये आप स्थित प्रज्ञ कह रहे हो, इसकी क्या भाषा है? ये कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या है? आप थोड़ा स्थित प्रज्ञ के बारे में बताएं। उसी प्रकार से आज प्रोफेसर साहब ने बताया कि संपन्नता की भाषा क्या है, संपन्नता कैसे बोलता है, कैसे हंसता है, कैसे चलता है, कैसे दिखता है, संपन्नता की आंखें क्या है, संपन्नता का पैर क्या है। संपन्नता वो भाव है, वो शांति है, वो भीतर वो शांति जिसमें आप अनायास प्रसन्न होते हो। और कब होते हो? बहुत सरलता से प्रोफेसर साहब ने बताया, जब आप परोपकार करते हो। बार बार उन्होंने औपनिषदिक सूत्र को बताया, त्यक्तेन भुंजीयथा, त्याग के साथ भोग करो। हजारों वर्ष से ये सूत्र पूरे भारतवर्ष में गूंजता रहा है, त्याग के साथ भोग करो। और मुझे लगता है कि लक्ष्मी मां को समझने के लिए ये सूत्र वास्तव में बहुत गंभीर और सटीक है। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्रोफेसर साहब। मुझे लग रहा है कि श्रोतागण को भी आनंद आ रहा होगा। फिर भी मैं श्रोताओं से ये कहूंगा कि आपके मन में भी कोई सवाल आता हो, यदि कोई प्रश्न पूछने में मैं चूक जाऊं तो आप लोग अवश्य पूछें, मैसेज करें या किसी प्रकार से हैंड रेज करें। हैंड रेज का ये बटन यहाँ पे है, तो आपको फाल्गुनी जी मौका देंगे कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे गुरु जी 1 घंटा हो गया है, तो अब श्रोताओं को मौका मिलना चाहिए कुछ पूछने का। हाँ, मैं बस एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद मैं श्रोताओं की ओर जाऊंगा। एक आखिरी सवाल ये है कि हम लोग किस प्रकार से परोपकार के अलावे, यदि हमें मूर्ति पूजा करनी है, दिवाली मनाना है, या किसी प्रकार का मंत्र करना है, या किसी प्रकार से मूर्त रूप में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो क्या कोई ऐसी साधना सरल आप बता दें
जो 5 मिनट हम लोग रोज दिया जला करके कोई मंत्र करके, ऐसे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, मैं प्रश्न देख के ही पढ़ रहा हूँ। तो इसका उत्तर आप प्रोफेसर साहब क्या देना चाहेंगे? इसके विशेषज्ञ आप ही हैं, इसका उत्तर आप ही देंगे। ठीक है, चलिए, जो लोग ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उनको मैं दिवाली के दिन उत्तर दूंगा। तो धनतेरस के दिन से लेकर के भैया दूज तक, ये 5 दिन हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि हम लोग पूजा पाठ किस प्रकार से करेंगे। और मैं देख रहा हूं 11 लोगों ने हैंड रेज किए हैं। तो फाल्गुनी जी, आप एक एक करके सबको अनुमति दें। उत्तर भी ऑडियंस में से कोई दे सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है कि हम ही लोग उत्तर दें। Guruji, sir, it's a beautiful session which is going on. इतने प्यारे प्यारे प्रश्न और इतने प्यारे प्यारे हमें उत्तर मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है सभी श्रोतागण मंत्र मुग्ध होके आप दोनों की कन्वर्सेशन को, मैराथन को ही सुने जा रहे हैं। और लग रहा है कि यहाँ से गुरुजी एक और अच्छा सा क्वेश्चन शूट करेंगे और यहाँ से अग्रवाल सर एक बढ़िया सा और आंसर देंगे। तो ये जो आप लोगों की जोड़ी और हम लोग को जो आनंद आ रहा है, हम उसका हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं सभी श्रोतागणों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग ने इतना सब अभी सुना है, इतने सारे पॉइंट सुने हैं, जरूर मन में कोई ना कोई प्रश्न आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी करनी है, आप लोग प्लीज हैंड रेज कीजिए। तब तक हम प्रज्ञा जी का एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रज्ञा जी, आप अपना म्यूट हटा सकते हैं। प्रज्ञा जी। प्रश्न ऐसा कुछ नहीं था, मैं यही जानना चाहती थी, हम जो ट्रेडिशनल माँ बाप ने जैसे सिखाया है इस तरीके से हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो कुछ सही गलतियां होती है या कुछ प्रॉब्लम होते हैं, एक प्रॉपर तरीका जानना। आवाज स्पष्ट नहीं है फाल्गुनी जी, जरा एक बार आप चेक करें। प्रज्ञा जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, अगर आप थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट कर देंगे या थोड़ा सा तेज बोल देंगे। हाँ हाँ, हमें एक सही तरीके से धनतेरस से अपने लक्ष्मी पूजन तक के जितने दिन रहते हैं उसका किस तरीके से पूजन करना चाहिए, ये जानना चाहती। सुनाई दे रहा है? गुरुजी, धनतेरस की पूजन के लिए वो और पूछना चाह रही हैं। जी जी जी, मैं जी। सुन लिया आपका प्रश्न। प्रिया जी, आप का प्रश्न जो मैंने लास्ट प्रश्न किया था वो उसी से संबंधित था। मेरे पास ऐसे 10-15 सवाल आ गए थे, तो इस प्रश्न के लिए मैं पूरा समय लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है। लक्ष्मी पूजा करने के सप्तविधि 7 विधियां हैं। 7 विधि से लक्ष्मी पूजा की जाती है। धनतेरस की पूजा हो, चाहे छोटी दिवाली की पूजा है, बड़ी दिवाली की पूजा है, चाहे भाई दूज की पूजा है, इन सब के बारे में मैं एक अलग से सेशन लूंगा और उस अलग से सेशन में मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दूंगा ताकि वो मंत्र और वो तरीके आप लोगों को पूरा लिखित में मिल जाए। और यही नहीं, मैं अपने साथ पंडित जी को बैठा करके उसका उच्चारण भी सिखाऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आप लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो दिया किस तरफ जलना चाहिए, घंटी किस तरफ रखना चाहिए, किस प्रकार के पुष्प डालने चाहिए, किस प्रकार से डालने चाहिए, हवन कैसे करेंगे, ये सारे जो भी रिचुअल्स हैं उसका सविस्तार मैं आपको 5 दिन तक, यानी 20 घंटे का वो प्रोग्राम है। उस 20 घंटे के प्रोग्राम में मैं पूरी डिटेल से आपको सारी बातें बताऊंगा। तो इस आपके प्रश्न को हमने रख लिया है और मैं निश्चित रूप से सविस्तार आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू प्रज्ञा जी। क्या कोई भी श्रोतागण है जो आप लोग का कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक गुरुजी एक प्रश्न मेरी तरफ से भी है, जब तक हमारे श्रोतागण पूछते हैं। गुरुजी, अभी डिस्कशन में ये बात आई कि लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी होती है और लक्ष्मी वहीं स्थिर होती है जहाँ विष्णु गुण होते हैं।
तो क्या आप या अग्रवाल सर हमें ये बता सकें कि विष्णु के वो क्या गुण होते हैं जो किसी भी पुरुष को धारण करने चाहिए ताकि लक्ष्मी उनके पास स्थिर रूप से रहे? प्रोफेसर साहब। आप उत्तर दीजिए गुरुजी। हाँ जी। विष्णु के 4 आप हाथ में देखे हो ना, जब वो अपने शयन अवस्था में होते हैं तो विष्णु के 4 हाथ होते हैं। एक में चक्र होता है, एक में गदा होता है, एक में कमल होता है और एक से वो आशीर्वाद करते हैं। ठीक बात है ना? तो उसी प्रकार विष्णु जी के 4 बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, 4 बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो लक्ष्मीपति हो पाते हैं। हम ये क्यों कहें कि लक्ष्मी आकर्षित होती है, बल्कि हम ये कहते हैं कि भगवान विष्णु के अंदर में वो सामर्थ्य हो पाता है जिससे वो लक्ष्मीपति हो पाते हैं। तो लक्ष्मीपति होने के लिए पुरुष को 4 हाथ उठाने पड़ते हैं, 4 हाथ होने पड़ते हैं। तो 4 हाथ हम समझते हैं। पहला हाथ क्या है? पहला हाथ है सुदर्शन चक्र का। सुदर्शन चक्र का अर्थ है मेहनत, कठोर परिश्रम, लगातार घूमना। उनकी उंगली पर भी वो चक्र लगातार घूमता रहता है। विष्णु जी शयन करते रहते हैं तो भी सुदर्शन चक्र रुकता नहीं है। सुदर्शन चक्र अनवरत अनवरत घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये शो करता है कठोर परिश्रम का, पुरुषार्थ का। पहली बात तो लक्ष्मीपति होने के लिए आपके भीतर पुरुषार्थ होना चाहिए, पौरुष होना चाहिए। अगर मैं ये पुरुषार्थ और पौरुष कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्त्रियों के लिए लागू नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मैं इंसान के लिए कह रहा हूं, फॉर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है? ऐसा नहीं कि मेल एंड फीमेल के लिए बात मैं कह रहा हूं। लक्ष्मीपति कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे जेंडर की बात नहीं, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर। तो यदि आप लक्ष्मीपति होना चाहते हो, संपन्नता और वैभव और ऐश्वर्य के स्वामी होना चाहते हो या स्वामिनी होना चाहते हो, तो सर्वप्रथम चाहिए कि आपके अंदर कठोर परिश्रम, मेहनत का भान हो। आप मेहनत करना जाने, मेहनत करना सीखें, मेहनत करें। आज इसके विपरीत बहुत लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए, छप्पर फाड़ के धन गिर जाए। ये वैष्णविज्म नहीं है। दिस इज नॉट द वैष्णविज्म। ये वैष्णव सोच नहीं है। वैष्णव सोच तो है कि एक एक नींव पत्थर और छोटे छोटे टुकड़ों से घर को खड़ा किए। जब जैसे वो राम सेतु की कहानी में वो चिड़िया थी ना, जो एक एक दाने चुग करके वो राम सेतु बना रही है, गिलहरी। गिलहरी, गिलहरी। तो वो वैष्णविज्म है, वैष्णविज्म है। तो वैष्णविज्म कठोर परिश्रम का द्योतक है। दूसरा गदा है। गदा का भाव होता है हमारे भीतर का भार। गदा भारी होता है। आप गदा मल्ल युद्ध में देखते हैं। हमारे भीतर भार क्या है? हमारे भीतर का भार है हमारा अस्थायित्व, हमारे भीतर का पृथ्वी तत्व, हमारे भीतर का स्ट्रेंथ। हमारे भीतर क्या स्थायी है? अभी क्या है, लोग बदल जाते हैं। अभी कुछ है, कल को कुछ हो जाएंगे। आज उन्हें कोई वचन दिया, कमिटमेंट तोड़ दिया। गदा अपने वचन पर स्थिर रहने का वो पृथ्वी तत्व है, वो स्थापत्य, वो स्टैब्लिशमेंट है, वो भार है। इसलिए जो गदा वाला हाथ है वो नीचे वाला है। आप देखे होंगे चक्र वाला हाथ ऊपर है और गदा वाला हाथ नीचे है। वो स्थायित्व, स्टेबिलिटी का प्रतीक है, सिंबलाइज्ड एज स्टेबिलिटी। आप स्थिर होते हैं, इमोबाइल होते हैं, आप अपनी बातों पे अड़े होते हैं, स्थिरता आप में होती है, आप में विचलन नहीं है, आप में चंचलता नहीं है, दृढ़ता है, दृढ़ता है, दृढ़ भूमि है आपकी। ये आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है। आजकल लोगों की पहचान नहीं है। अभी कुछ है, कल कुछ हो जाएगी, बदल जाएंगे।
लोगों ने अपनी पहचान खो दी है। गदा प्रतीक है पहचान का, आपकी आइडेंटिटी का, आपकी पहचान है, स्थायित्व है, आपके कमिटमेंट्स हैं, आपकी दृढ़ता है, आपका संबल है, आपका नींव है, आपका पिलर है, आपका स्तंभ है, आप स्तंभित है। ये दूसरा है, दूसरा पौरुष है, दूसरा पुरुषार्थ है कि आप स्तंभित हो, आप दृढ़ हो। तीसरा हाथ है कमल का। कमल प्रतीक है सत्व का। अभी अभी प्रोफेसर साहब ने 3 प्रकार के वाहन की बात करी कि उल्लू पे भी मां आ सकती है, मां हाथी पर भी बैठ के आ सकती है, और मां कमल पे भी विराज सकती है। भगवान विष्णु के तीसरे हाथ जो कमल रूपी है, वो सत्व का प्रतीक है। कमल सदैव सत्व। आप देखो भारत पे सारे देवी देवता कमल पे होते हैं, है ना, सारे देवता दिखते हो कमल पे। कमल सत्व का प्रतीक है। वो कीचड़ में भी उगता है, लेकिन कीचड़ उस पे लगता नहीं, वो कीचड़ के ऊपर आ जाता है। कीचड़ में होते हुए भी उस पर कीचड़ के दाग नहीं आते, वो कीचड़ से सना नहीं होता, वो सुंदर अपने सौंदर्य को बना के रखता है। तो ये सत्व गुण है। तो तीसरा हाथ सत्व गुण है। और इसी प्रश्न का उत्तर प्रोफेसर साहब ने दिया कि आप बुरे तरीके से, गलत तरीके से कमा करके अमीर तो बन सकते हो, पर वैष्णव नहीं हो सकते, संपन्नता नहीं ला सकते, ऐश्वर्य नहीं ला सकते। आप लाओगे अपने पीछे बीमारियों को, लेथार्जीनेस को लाओगे। अभी प्रोफेसर साहब ने एग्जाम्पल दिया कि 18 साल का बच्चा और लेटा पड़ा है, सब कुछ घर में है, एक लैपटॉप बगल में पड़ा हुआ है और लेटा हुआ है। तो आप लक्ष्मी तो ले आए, लेकिन आप संपन्नता नहीं ला पाए, आप स्वास्थ्य नहीं ला पाए, आप स्वतंत्रता नहीं ला पाए, स्वधर्म नहीं ला पाए। तो वो कमल प्रतीक है उस बात का कि आपके भीतर वास्तविक अर्थ का संपन्नता और स्वतंत्रता आए। और चौथा हाथ जो वरद हस्त का है, उसका अर्थ होता है परोपकार, जो अभी हम लोग ने इतनी चर्चा करी कि परोपकार हो, है ना। वो चौथा हाथ हमेशा तैयार होता है दूसरे की मदद करने के लिए, पुण्य करने के लिए। तो चौथा हाथ पुण्य के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो जिसके अंदर में ये 4 हाथ हो, ठीक है, तो वो वैष्णव होता है। लक्ष्मी, वो लक्ष्मीपति कहलाने योग्य हो जाता है। जी गुरुजी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन गुरुजी। हार्ड वर्क, सुदर्शन चक्र, कमिटमेंट, गदा, लोटस, सात्विक होना, और हस्त, आपका वृद्ध हस्त होना आपका परोपकार का सिंबल है, दूसरों की मदद करने का सिंबल है। और ये चारों गुण जिस भी पुरुष और स्त्री में हो, वो लक्ष्मीपति हो सकते हैं। थैंक यू गुरुजी। ये बहुत ही मुझे लगता है सभी को इस प्रश्न से कुछ ना कुछ आंसर मिला होगा। मुझे श्रोतागणों से मेरी रिक्वेस्ट है, इफ किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी नहीं है तो मैं गुरुजी की आज्ञा से इस सेशन को, इस पॉडकास्ट को अंतिम रूप की ओर लेके जाना चाहूंगी। यहाँ पे राजीव सर जुड़े हुए हैं, मीनल जी जुड़ी हुई है, रचना जी जुड़ी हुई है। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो हाँ जी राजीव सर। जी प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रोफेसर साहब। आज जो चर्चा हुई है, मेरे मन में ये चर्चा कल से चल रही थी। कल से मैं इस चीज के ऊपर विचार कर रहा था, मनन कर रहा था, और आज आपने ये चर्चा छेड़ के बहुत सारे सवालों के जवाब तो दे दिए हैं। लेकिन मैं अपने मनन की जो मेरी स्थिति थी वो मैं सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं कल यही सोच रहा था कि सारी जिंदगी हमें अच्छे से काम करते हो गए, ईमानदारी से काम करते हो गए, लेकिन हम उतनी ऊंचाइयों पर जिंदगी में नहीं पहुंच पाए जितने की जो लोग, बहुत सारे लोग बेईमानियों से पहुंचे हुए हैं, और हर तरह के कर्म करके उन्होंने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली है, समाज में रुतबा है, सम्मान है। तो मैं इसी के ऊपर मनन कर रहा था कि इसका मैं कैसे, मुझे इससे संतुष्टि क्यों नहीं है, अपने सत्य के मार्ग पे, सही रास्ते पे चलने के बाद भी मेरे अंदर वो संतुष्टि क्यों नहीं है। मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि जो आज बड़े बड़े उद्योगपति बन गए हैं, तो वो
वो बेईमानियों के बाद भी इतनी अच्छी स्थिति में, मैं उनको अच्छा क्यों मान रहा हूँ, मैं अपने आप को अच्छा क्यों नहीं मान पा रहा हूँ। तो मेरे मन में जो एक क्रॉस क्वेश्चन आया गुरुजी, वो ये आया कि मैं सत्य के मार्ग पे चल जरूर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उससे आनंदित इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे असत्य के मार्ग पे चलने का मौका नहीं मिल रहा। मेरे अंदर वो सच्चाई उतरी है नहीं, कि इसीलिए मेरी तमन्ना कहीं ना कहीं अगर ये मौका मिला होता बेईमान होने का, तो मैं शायद वो बेईमानी करके उस तरीके की दौलत अर्जित कर लेता। तो इसीलिए मुझे वो संतोष होता नहीं है, अपने सत्य के मार्ग पे चलने में से भी मुझे वो आनंद नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए था। तो लेकिन बहुत सारी जवाब प्रोफेसर साहब ने भी दिया आज और आपने भी दिए गुरुजी, कि बहुत सारी भावनाओं के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बस यही मनन की एक स्थिति थी, तो मैंने आपके सामने रखी। आप इस पर भी टिप्पणी करना चाहें तो बताइए गुरुजी। श्रीमान जी, एक टिप्पणी मैं इस पे करना चाहता हूँ। जी एम आई ऑडिबल, विजिबल? जी सर, जी। जी जी जी। भीतर वाले भगवान की हत्या करके आप बाहरी जगत में अगर कुछ पालेंगे तो वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे या हमें भुगतने पड़ेंगे। इसलिए भीतर वाले भगवान को जिंदा रख करके ही हमें कुछ भी करने की सोचनी चाहिए। भीतर वाले भगवान का मतलब है, गुरुजी ने बताया, संवेदना, सत्य, संयम, इन सब मानवीय सद्गुणों को अपने भीतर जीवित रखकर ही हम जीवन यापन की सोचें। ये कर्मों का जंजाल बड़ा उलझा हुआ होता है। इसको भगवत गीता कहती है गहना कर्मणो गति। ये चीज जल्दी समझ में नहीं आती। सबको बाह्य चीजें आकर्षित करती हैं, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन चलता रहता है। और क्या होता है कि एक कदम आप दलदल की तरफ बढ़े, कोई बात नहीं। जब 10 कदम दलदल की तरफ बढ़ जाते हैं, दलदल में फंस जाता है आदमी, तब चिल्लाता है, तड़फता है कि हाय मैंने ये काम क्यों किया, हाय मैं क्यों फंस गया। देख रहे हैं कि बड़ी गाड़ी में लोग घूम रहे हैं, बड़े मकानों में लोग रह रहे हैं उल्टे सीधे काम करके, लेकिन जब वो फंसते हैं, जब उनकी दुर्गति होती है, जब भयंकर बीमारियां और भयंकर परेशानियों से वो तड़पते हैं, तब पता चलता है कि भाई जो हम भीतर वाले भगवान को मार करके या उल्टे सीधे उपाय करके हम जो ये बढ़ गए, उसके कितने खतरनाक दुष्परिणाम सामने आए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको ऐसी प्रज्ञा दे, रितंबरा दे, विवेक दे, योगिक विजडम प्रज्ञा, कि आपको ये सारा खेल समझ में आए कि गलत कर्म करते करते गलत कर्म संस्कार या गलत ग्रंथि सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने बना लिया, हमने बना ली, उसका कितना भयावह परिणाम। कुछ पैसों के लिए, कुछ लाखों रुपए के लिए, कुछ करोड़ों रुपए के लिए हमने जो ग्रंथियां पाल ली, उस वो हमें हमेशा के लिए उसने हमारा बुढ़ापा खराब कर देना है या शांति पैदा कर देनी है या भयंकर समस्याएं पैदा कर देनी है। उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यही तो साधना का या अध्यात्म का खेल है। जब ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो व्यक्ति, उसको रूखी सूखी भी मिल जाए उसी में खुश रहता है। उसने कहा अच्छा है, मैंने, मेरे से कोई गलत काम तो नहीं हुआ, मैंने कोई गलत तरीके तो नहीं अपनाए, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं, आज शरद पूर्णिमा का दिन है, कि भगवान रितान्वेशी के हम सभी सदस्यों को इतनी सद्बुद्धि प्रदान करे, इतनी प्रज्ञा प्रदान करे कि इस सृष्टि के गूढ़ रहस्य हमारी समझ में आने लगे और हमारे भीतर का संतोष बढ़ते बढ़ते, हमारे भीतर का आनंद बढ़ते बढ़ते तुर्यावस्था तक, स्टेट ऑफ ब्लिस और उच्च आनंदमयी अवस्थाओं तक जाने लगे। आपको पता, महर्षि रमन कोपीन पहन के रहते थे और उनके पास जो भी आता था वो सहज में ही संतुष्ट और खुश हो जाता था। उनके पास बैठते ही खुश हो जाता था। उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल उनके पास में वेव्स थी, शांति की वेव्स थी। वो छोड़ते थे, खुश हो जाता था बंदा। तो हमारा भी उसी स्तर तक विकास हो। हम इस संसार की मृत तृष्णा या माया जालों में ना उलझे और जो जीवन की सच्चाई है, जो जीवन की गहराई है, जो सृष्टि की गहराई है, उसको समझ पाएं और इधर उधर भटकावों में अपने आप को ना भटकाएं। आज शरद पूर्णिमा के दिन भगवान से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। Thank you so much, sir. Thank you so much. Beautiful, beautiful explanation. और
मैं राजीव सर को भी थैंक यू करना चाहूंगी इतने प्यारे प्रश्न के लिए, और आपने इतना कॉन्टेम्पलेट किया, इतना मनन किया अपने एक्शंस को लेके, और ये प्रश्न आपके मन में आया, तो मुझे लगता है सभी को एक बहुत ही सुंदर उत्तर अग्रवाल सर की तरफ से मिल पाया। थैंक यू सो मच सर राजीव मुझे तो एक ये और प्रश्न इसके आगे भी सबके मन में होता है। ये जी। तो शर्मा जी ने पूछ लिया, वो उनकी हिम्मत की बात है। लेकिन ये प्रश्न कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि लोग बुराइयों के प्रति आकर्षित होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम उनकी तरह बन जाते तो आज हम भी, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं पड़ता कि वो जो उसका मार सह रहे हैं या सहेंगे, वो पार्ट लोग नहीं देख पाते हैं। अगर इतनी दिव्य चक्षु उनकी खुले और वो उस बात को भी देखे कि वो जो बुराई कर रहे हैं उसके बाद कितने थपेड़े लग रहे हैं उनको और या लगने वाले हैं, तो ऐसी कामना वो भूल के भी ना करे। फिर एक और चीज मेरे जो ध्यान में है गुरुजी कि आप अभी महालक्ष्मी की 4 दिन की पूजा कराने वाले हैं, समझाने वाले हैं, सब बताने वाले हैं, पूरे विधि विधान और सब मंत्र जाप और सब कुछ बताएंगे। तो मेरे मन में आया कि ऐसा करने से मेरे पास बहुत लक्ष्मी आ जाएगी, बहुत पैसा आ जाएगा। तो फिर मैंने अपने आप कंटेम्पलेट किया और अभी मुझे इसका जवाब ये मिला कि वो पैसा चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन उसको करने से वो एक तो परोपकार की भावना आएगी, दूसरा संतोष धन आएगा मेरे पास, और जो सारे के सारे गुण प्रोफेसर साहब ने बताए अभी, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से उतरेंगे जरूर। तो शायद वो देखो, पूजा करने का जो लक्ष्मी का आना है। एक और बात है, एक और बात है शर्मा जी, कई ऐसी विघ्न बाधाएं हैं जिससे हमें माँ को पुकारने का मौका मिल जाता है। देखो, अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि साल में महासरस्वती के लिए भी पूजा है, दुर्गा जी के लिए भी पूजा है, काली जी के लिए भी पूजा है। ये सब हमारे भीतर की दिव्य शक्तियां ही तो है। तो जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उससे संबंधित जो विघ्न बाधाएं हैं, जो नाड़ी उपत्यकाएं हैं, जो हमारे भीतर दोष है, तो साल में वो दोष दूर कर लेते हैं हम लोग। उस पूजा से, उस व्रत से, उस निष्ठा से, उस मंत्रोच्चारण से, उसके प्रभाव से उस दोष को भी दूर करते हैं। ये केवल साइकोलॉजिकल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मैंने आपको समझा दिया और आज आप समझ गए, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो सारी अच्छी अच्छी बात पढ़ने के बाद सारे लोग सज्जन हो जाते। लेकिन वो आपके व्यवहार में उतर सके, आपके नस नाड़ियों में उतर सके, लहू बन करके धमनियों में दौड़ सके, और जो विघ्न बाधा के रूप में हमारे जीवन को पीड़ा और कष्ट के रूप में खड़े हमारे जीवन में हो गए, तो ये जो त्योहार ऋषि मुनियों ने जो ये त्योहार बनाए हैं, उस माध्यम से उनसे संबंधित जो रोग कष्ट उपत्यका हमारे भीतर है, गांठें हैं, उनको हम दूर करते हैं। ये बात है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। गुरुजी, बस एक अंतिम प्रश्न लेके इस सभा को हम संपूर्ण करेंगे। मैं देख पा रही हूँ अभिषेक जी ने हाथ रेज किया है। अभिषेक जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज काइंडली शेयर योर क्वेरी। धन्यवाद सवाल के लिए, मौका देने के लिए। और थैंक यू गुरुजी, आप ऐसे आते हो और हर चीज के बारे में बताते हो। हम लोग तो अज्ञानी है, अगर आप नहीं होते तो कहीं पता नहीं कूड़ा करकट में पड़े रहते। और आज नए गुरुजी से भी इंट्रोडक्शन करा, इनसे इनकी बातें सुनकर एकदम ठंडक पहुंच गई है दिल में। लेकिन एक सवाल है, एक इसको कौतूहल बोल सकते हैं, जिज्ञासा नहीं पर कौतूहल तो बोल ही सकते हैं एटलीस्ट, कि हमारे देश में हम लोग माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी, इनको पूजने की संसाधन, इनकी विधि, इनके तरीके, इनके नियम बनाए हैं। हमारे पास कई भगवान है, कई देवता है, कई एनर्जी है, जिसको हम पूज के हम लोग संपन्न बन सकते हैं, हम लोग ज्ञानी बन सकते हैं। लेकिन अगर स्पष्ट रूप से एज अ सोशल लेवल पे हम लोग देखें तो ना ही इस देश को ज्यादा नोबेल प्राइज मिले हैं, तो ज्यादा मैं ये नहीं समझता कि सरस्वती मिली है। ना ही यहाँ पर इलॉन मस्क या बिल गेट्स जैसे लोग पैदा होते हैं जो भरपूर पैसे रखते हैं, मतलब शायद देश के देश खरीद सके। उन्होंने कभी ना ही लक्ष्मी पूजन करी, ना ही उनको लक्ष्मी का कोई श्री सूक्त के कोई श्लोक पता होंगे, ना ही उन लोगों को, जैसे अरब देश है तो वहां तो
अभद्रता और अपने जो संस्कृति है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ हमको एक वाइफ रखकर उसी की पूजा करके उसी के साथ रहना चाहिए। वहां उनका नियम है कि खेमे के खेमे लेके घूमो। और जहां हम लोग कभी एक मच्छर को भी मारने के लिए सोचते हैं, नहीं मच्छर नहीं मारना चाहिए, उड़ा देते हैं अगर हो सके तो वहां वो उन लोग का नियम है कि हम लोग प्योर नॉनवेज है। और सबसे ज्यादा संपन्न, सोने की थालियों में खाना, सोने की गाड़ियों में घूमना, और सब कुछ उन देश के पास है जिस देश में देवत्व और किसी भी तरीके की संसाधन के लिए कुछ भी नहीं। तो ये ऐसा क्यों है? और अगर इसमें ऐसा है, मतलब मैंने ही मनन करते हुए इसका जवाब ढूंढा था कि अरे ये सब भले ही हो, लेकिन वहाँ बीमारी है, वहाँ डाइवोर्स रेट है, वहां पर ये है। लेकिन वो जवाब में मुझे मजा नहीं आ रहा है, मतलब ये मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूँ फिर से। आखिरकार तो अगर ये देश लक्ष्मी जी का देश है, विष्णु का देश है, महादेव का देश है, तो ये तो भरपूर होना चाहिए था। मतलब ऐसा क्यों नहीं है? इसमें मैं भाई साहब एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप ने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि दूसरे देश ज़्यादा संपन्न है, लेकिन अगर आप बड़ी-बड़ी कंपनी के सीईओज़ देखें, आप गूगल का सीईओ देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देख लीजिए, आप और दूसरी कंपनीज़ के सीईओ देख लीजिए, तो उसमें ज़्यादातर टैलेंट जो है वो इंडियन है। तो जो ये पूजा पद्धति का, कर्मकांड का विधान या विज्ञान ये सारा बनाया गया है, इससे भारत का जो टैलेंट है वो उभरता है। और वो जाकर के, ये अनफॉर्चुनेट है कि वो विदेशों के वो संभाल रहा है, चीजें संभाल रहा है, हमारे यहाँ उसका सदुपयोग हम लोग नहीं कर पाए। कुछ कमियां हमारी इस तरह की रह गई, जो बड़ी संख्या में यहाँ से प्रतिभा पलायन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जो आप बता रहे हैं कि माँ सरस्वती का या माँ लक्ष्मी का या ये जो है इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अगर ऐसा होता तो भारत का टैलेंट जगह जगह ना जाता। और सबसे ज्यादा अगर कहीं पूछ है पूरी दुनिया में तो भारतीय प्रतिभा की है। हम कहते हैं मैं आईटी सेक्टर में प्रोफेसर हूँ, लेकिन इंडियन टैलेंट आईटी, इंडियन टैलेंट की कदर सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। तो ये भी एक बात है कि क्यों ऐसा, क्यों इंडिया में सारा टैलेंट क्यों पैदा हो गया, इतना टैलेंट क्यों पैदा हो गया। अमेरिका बड़े गर्व से कहता है कि हम तो सारी दुनिया की मलाई, भारत की मलाई अपने यहाँ बुला लेते हैं। हम कहते हैं हमारे यहाँ मलाई इतनी है, तुम कितनी भी बुला लो, फिर भी हमारे पास में मलाई की कमी नहीं रहेगी। हमारे पास में बहुत टैलेंट है ना। तो बहुत संस्कार है हमारे पास में। हालांकि हम क्योंकि इन चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं तो चीजें कम होती चली जा रही धीरे धीरे। लेकिन फिर भी एक सर्वे हुआ था, उसमें कहा गया था भारत में 10 में से 7 बच्चे ब्रिलियंट पैदा होते हैं, अमेरिका में 10 में से 3 ही ब्रिलियंट पैदा होते हैं। तो भारत का जो सारा सोशल स्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर, ऋषियों की जो एंशिएंट विजडम है, अगर उसको सही से खोजा जा सके और उसको सही से लगाया जा सके तो बहुत हम लोग कामयाब हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रयोग इस दिशा में किए। मैंने अपने बेटे की मानसिक शक्ति वर्धन के लिए 3 साल उसमें प्रयोग किया और ईश्वर कृपा से उसके मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले। उसके JEE एडवांस में 32 रैंक आई। मैं देख के दंग रह गया। इसलिए नहीं कि उसकी 32 रैंक आई, इसलिए कि हमारे पास में ऐसी ऐसी चीजें विराजमान है और मुझे तो बहुत थोड़ी नॉलेज है। मेरे पास तो, मैं तो कंप्यूटर का प्रोफेसर हूँ, मुझे कुछ फंडे हाथ लगे, कुछ सूत्र ऐसे हाथ लगे और मैंने अपने बेटे पे प्रयोग किए। सौभाग्य से वो सुपात्र भी था, उसने प्रयोग करवा भी लिए। नहीं तो बच्चा कहता मैं क्यों उठूं 5 बजे, मैं क्यों सूर्य के सामने खड़ा हूँ 5-5:30 बजे उठ के, मैं क्यों ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम भास्कराय नमः करूं, है ना। मुझे सोने दे बापू, तो अपना काम कर। सौभाग्य से उसने करवा भी लिए वो प्रयोग सारे। तो जैसे ये बात भाई साहब ने बताई कि हमारा दिव्य चक्षु खुल जाए, ज्ञान चक्षु खुल जाए, तो थर्ड आई कैसे ओपन हो सकती है, इसके द्वारा जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है कैसे एक्टिवेट हो सकते हैं, और इन सारी चीजों पे मैंने बहुत सारे प्रयोग करके देखे। तो मैं भारतीय संस्कृति की महिमा को देख करके दंग रह गया। उन ऋषियों की जो दूर की सोच है, दूरदर्शी सोच है, उसको देख के दंग रह गया कि चीजें लुप्त ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने इस तरह से कर्मकांडों के अंदर सजोया चीजों को, उन चीजों को। दुर्भाग्य हमारा है कि हम चीजों के विज्ञान और विधान को ठीक से अपना नहीं पाते या समझ नहीं पाते, इसलिए चीजें मजाक बन जाती हैं हमारी। तो NIT कुरुक्षेत्र में भारत सरकार ने इंडियन नॉलेज सिस्टम सेल चलाया कि हमारी भारतीय पुरानी जितनी भी पद्धतियां हैं हम उनको दोबारा से खोज करके अपनी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो अब प्रयास इस तरह के हो रहे हैं। आने वाला भविष्य हम सबके लिए उज्जवल होगा।
भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, पूरे विश्व में उन पर खोज चल रही है। गुरुजी इस बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं क्योंकि देश विदेशों में बहुत घूमे हैं। तो किस तरह से विदेशों में रिसर्चेज चल रही है इन सारी चीजों पे, भारतीय संस्कृति। सबको ये लगता है कि भारत के पास में बहुत अनमोल ऐसा खजाना भरा पड़ा है इन सब चीजों का, ऐसे रहस्य बड़े पड़े हैं, ऑकल्ट साइंसेस, ये वो सब चीजें। तो आप जो बात कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ सरस्वती पूजा हुई, ये हुआ ये हुआ, समय के साथ साथ चीजें हमारी होती गई। ये साइन वेव चलता है, एक बार उठता है, एक बार गिरता है, एक बार उठता है, एक बार गिरता है। हम अहम में आ जाते हैं जब चीजें उठ जाती हैं, फिर वो गिरने शुरू हो जाती हैं, लुप्त होती चली जाती हैं, फिर हम खोजबीन करते हैं, फिर उठते हैं। तो अभी उठने का समय। मैं तो भाई साहब आयुर्वेद को देख के दंग रह जाता हूँ कि वात पित्त कफ का इतना शानदार विज्ञान दिया है। मैं बचपन में बहुत बीमार रहता था और मैंने वात पित्त कफ के जब सूत्र पढ़े और उसको जीवन में अपनाया तो मुझे 20 साल से कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी एलोपैथी। इतना मेरा स्वास्थ्य ठीक है। इम्यूनिटी के इतने अच्छे अच्छे सूत्र हमारे आयुर्वेद में दिए, मैं देख के दंग रह गया। जो फास्टिंग है, लंघनम परम औषधम जिसको कहते हैं, उस पे डॉक्टर योशिनोरी ओशोमी जापानीज साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज दे लिया। हम उस फास्टिंग पे सही से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सारी चीजों। तो भाई साहब ये कमी हमारी है। हमारे ऋषियों ने तो हमें बहुत कुछ दिया है और कुछ ऐसे सूत्रों में गूंथ करके दिया है ताकि वो चीजें चलती रहें किसी ना किसी रूप में। चलो सरस्वती माता के रूप में, लक्ष्मी माता के रूप में, माँ काली के रूप में, किसी ना किसी तरह से हम पूजन उनका करता रहे, अपनाते रहे उन चीजों को। जिस दिन हमें उस रहस्य का सही ज्ञान हो जाएगा और हम उसको अपने उसमें ले आएंगे, उस दिन कमाल हो जाएगा हमारे जीवन में भी और इस देश में भी। तो ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं कि भाई, आपका प्रश्न जायज है कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ सारी पूजाएं हो रही है, फिर भी यहाँ कंगाली छाई पड़ी है, फिर भी यहाँ समस्याएं हैं, फिर भी यहाँ है, क्योंकि उन चीजों को हमने सही से अपनाया ही नहीं। क्या करें, सही से अपनाया होता तो आज ये देश की हमारी दुर्गति ना हो। अब गुरुजी जैसे लोग इस फील्ड में उतर रहे हैं, सबको जगा रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, है ना, रितान्वेशी के माध्यम से, तो धीरे धीरे सारे ज्ञान विज्ञान इसकी खोज होगी और हम लोग अपनाएंगे धीरे धीरे करके और समाज के सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, विचार है। धन्यवाद। एक और बात है प्रोफेसर साहब की आप बहुत गौर से इस जियो पॉलिटिक्स को देखें, हाँ जी। क्योंकि ये प्रश्न बहुत कुछ आध्यात्मिक के अलावा जियो पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है। आज से कुछ साल पहले, यानी 400-500 साल पहले, भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। अगर हम मुगलों के आक्रमण से और पहले चले जाए तो यहाँ पर हर 20 किलोमीटर पे एक गुरुकुल हुआ करता था और उसके दस्तावेज है। ये बात यूं ही नहीं है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पूरी दुनिया में कोई देश था, कोई संपन्न स्वर्ण की चिड़िया जैसी कोई देश कही जाती थी, जिसको खोजने के लिए लोग अमेरिका से खोज लेते थे, है ना। कोलंबस ढूंढते हुए जो है अमेरिका चला गया। लेकिन ये जो 300, 400, 500 सालों में जो पराभव आया है वो जियोपॉलिटिकल रीजन से है। उसका दोष आप देवताओं पर मत मढ़िए है ना, वो जियोपॉलिटिकल रीजन है। अच्छा, एक बात और है, कई ऐसे साम्राज्य उठे, मेसोपोटामिया उठा और वो कहाँ चला गया, न जाने कितनी कितनी सभ्यताएं, रोमन सभ्यताएं, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती है कि मिट नहीं रही है। इतने इतने आक्रमण हो रहे हैं, पूरा जो मिडिल ईस्ट से लेकर के पाकिस्तान तक पूरा मुस्लिम हो गया। मुझसे कोरिया में किसी इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा कि ये आपके देश के हिंदू लोग बने किस मिट्टी से हैं? इनको मुगलों ने आके रौंद दिया, अंग्रेजों ने आकर के रौंद दिया, तब भी 80% हिंदू है बाकी तो बदल गए, कोई क्रिश्चियन कंट्री बन गया, कोई जो है मुस्लिम कंट्री। इतना रौंदा गया पिछले 700-800 सालों में, इतना रौंदा गया कि अगर किसी और कंट्री को रौंदा गया होता तो उसका नामो निशान मिट जाता। ऐसे कितने सभ्यताएं हैं जिनका आज कोई एविडेंस ही नहीं है, खत्म हो गए वो पूरे। सब बच्चे बूढ़े सब के सब, उनके सारे मंदिर सब खंडर हो गए, खंडर भी खंडर हो गए, कुछ नहीं बचा उनका। और भारत है कि सारे झंझावत, आपको तो बल्कि तारीफ करना चाहिए,
इतने बड़े बड़े झंझावत में, इतने बड़े बड़े तूफान में भी अपनी किश्ती संभाले हुए है। कुछ तो बात है, कुछ तो सरस्वती है, कुछ तो लक्ष्मी है, कुछ तो काली है। इतना झंझावत कौन झेलता है? हमें एक भी कंट्री का नाम बता दो। भारत में एक एक बड़ा नगर, मैं काशी का हूं, काशी 5 बार नेस्त नाबूद हुआ है, 5 बार। नेस्त नाबूद का मतलब है एक एक बच्चा, एक एक घर, एक एक धन दौलत सब बर्बाद, एकदम मरुस्थल बना दिया गया और फिर से वो खड़ा हो गया। अरे भारत मृत्युंजय है, मृत्यु को जीत करके उठ जाता है। बार बार यहां रौंद दिया गया, फिर से उठ के खड़ा हो गया। भारत तो मरा ही नहीं कभी, इसको तो आशीर्वाद मानना चाहिए, बल्कि इसके लिए तो सीना चढ़ाओ कहना चाहिए। हमारे यहाँ सरस्वती है तभी बच गया, हमारे यहाँ महालक्ष्मी है, महाकाली, लोग जो बचा के रखे उसमें से बच गया। ये किसी वजह से ये खड़ा हो जाता है, इतनी तूफान आती है तो भी खड़ा हो जाता है। किस देश ने आक्रमण नहीं किया, चाहे चंगेज खान ले लो, चाहे उधर से मुगलों का आक्रमण हो, चाहे अंग्रेजों का हो, चाहे कहीं का भी हो, हर चीज हर बार झेल गया और गिरा नहीं है, चढ़ रहा है। जैसे ही मौका मिला, अभी भारत जो है हर जगह से नाम हर जगह होने लगा भारत का। भारत की विद्याएं आज कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से, अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, मैंने भी कई खोजबीन की है और मेरे भी मन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि किन किन मेथड्स को पूरे ज्योग्राफी में यानी पूरे वर्ल्ड में भारतीय थॉट्स को, इंडियन थॉट्स को, उसको वहां के लोगों ने अपनाया, वहां का नाम दिया और वो वहां का हो गया। देखो, मैं आलोचना करके दूसरों की बुराई नहीं कर रहा। अगर अरब में भी कुछ देखो ईमानदारी है, कुछ ऐसा नहीं कि सब के सब वहां दैत्य राक्षस है, वहां पे ईमानदारी बहुत ज्यादा है। आप देखो यूरोप चले जाओ, यूरोप में है कि दूसरों के प्रति लोग बुरा नहीं करते। मतलब वो आप सोचो कि वहां के रोड्स पे लोग हॉर्न नहीं बजाते, क्यों? क्योंकि अगले को तकलीफ ना हो। वहां पर इतनी इंसानियत इस रूप में है कि लोग दूसरे का दुख नहीं पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज उनके संपन्नता का कोई ना कोई वैष्णव गुण उनमें है। आप ये नहीं कह सकते हो कि बस भारत में सारे देवता 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 है और बाहर सब दैत्य दैत्य। ठीक है, हम हमारी देखने की निगाहें हैं तो हम सब में कमियां, हम छिद्राणवेशी हो सकते हैं, सब में छिद्र देख सकते हैं, लेकिन जापानियों में भी खूबी है ना, कोरियंस में भी कुछ खूबी है, कुछ खूबी आपको यूरोपियन से मिल जाएंगे, अमेरिकन से मिल जाएंगे। इन सब में इंसान के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ गुण, कुछ दैवीय गुण उनमें हमसे ज्यादा है, हमें सीखना चाहिए। सही बात। जब तक आप कोने से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको लगेगा कि यही, आप बाहर निकलो, बाहर भी बहुत प्रकार के गुण सद्गुण है, बाहर भी आपको बहुत बड़े बड़े दार्शनिक मिलेंगे, विचारक मिलेंगे। ठीक है, लक्ष्मी जी को लक्ष्मी के रूप में ना पूछ करके, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कहता हूं, जिसको यहूदी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, इब्राहिम को मानते हैं, उनकी पत्नी सारा को मानते हैं। क्या इब्राहिम और सारा की कहानी, क्या इब्राहिम ब्रह्मा और सरस्वती जैसी कहानी नहीं है? आप पढ़ के देखना, आप पढ़ के देखना, इब्राहिम को और सारा की कहानी पढ़ के देखना, आपको ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। मूसा और कृष्ण की कहानी पढ़ के देखना, मूसा और कृष्ण में ज्यादा फर्क आपको समझ में नहीं आएगा। भाई वो किसी और नाम से, किसी और रूप में उन्हीं की पूजा कर रहे हैं ना, हम उनको कोई और रूप दिए। भगवान की पूजा एक ही तरीके से नहीं। देखो, परमात्मा अनंत है तो परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते भी अनंत है। तो वो कुछ अनंत रास्ते हैं, वो कुछ और रास्ते से उनकी उपासना पद्धति रही है। हो सकता है कि हमारी पूजा ज्यादा वैज्ञानिक है, हम इस बात को मानते हैं कि बाकी जगहों से हमारी पूजा तुलनात्मक रूप से ज्यादा वैज्ञानिक है, और आज मैं कह रहा हूं, कल को ये विज्ञान कहेंगे, आज प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, कल को यहाँ पर कोई नोबेल पुरस्कार विजेता कहेगा आपको ये बात, कि जो आज विज्ञान जिस ओर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं वो वैदिक बातों को वापस से परिभाषित हो रहा है। जो बात पहले वैज्ञानिक दबी आवाज में कहते थे, अब वो खुल के कह रहे हैं। जो मायावाद को, जो ब्रह्म ज्ञान को भारतीय कह करके कहीं दबाया छुपाया गया, कहीं रेसिज्म हुई है, अब जब से साइंस क्वांटम फिजिक्स हुआ है और जब वो गैरीय अणु से भी परमाणुओं और परमाणुओं से भी परमाणुओं की बात जब होने लगी है, तो वो सारे राज खुल के सामने आने लगे। जब अंतरिक्ष की खोज हो रही है
तो भारत ने जो जो बातें कही थी वो निकल निकल के सामने आ रहा है। तो आप इंतजार करो जोशी जी, बहुत कुछ अभी सामने आने वाला है। हमारे भारत की महिमा का जो है बहुत तरह के स्वरूप निकल के आने वाले हैं। इसलिए दूसरों के जो भी आप संपन्नता, सो कॉल्ड संपन्नता को देख करके आप ये मत समझिए कि ये कोई भारत की हार या पराभव है। भारत जिस परिस्थितियों में आज भारत है वो वंदनीय है, और आगे जो होने वाला है वो हम लोगों के लिए गौरव है। आज आपके प्रश्न के उत्तर में इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। खूब खूब धन्यवाद गुरुजी, आप दोनों का फिर से आस्तिकता दिल में बनाए रखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अभिषेक जी। प्रश्नकर्ता की प्रशंसा बहुत आवश्यक होती है गुरुजी, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत लोगों के मन में उठते हैं, वो जिस भी हेजिटेशन की वजह से नहीं पूछ पाते हैं। अभिषेक जी जैसे प्रश्नकर्ता ही बहुत सब लोगों की, श्रोताओं के मन के भावों को क्लियर कर देते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सभी प्रश्नकर्ताओं का जिन्होंने भी आज प्रश्न किए, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुजी का और अग्रवाल सर का कि आप दोनों ने इस सभा को इतना सुंदर रूप दे दिया कि ये रितानवेशी के हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट, एंड इट्स अंकित हो चुका है वो वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहूंगी आज श्रोतागण जो 4 मेन पॉइंट्स हमारे आज पॉडकास्ट से लेके जा सकते हैं, जो कि पहली चीज जो गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार से कोई भी स्त्री और पुरुष विष्णु के 4 गुणों को धारण कर लें तो वो लक्ष्मीपति हो सकते हैं, जिसमें आता है हार्ड वर्क, कमिटमेंट, बीइंग सात्विक एंड हेल्पिंग अदर्स। दूसरा, अग्रवाल सर ने हम लोगों को बताया कि त्याग के साथ भोग कीजिए और अपरिग्रह का जीवन सीखें, ताकि जो भी वस्तुएं हमारे काम की नहीं है, थॉट्स काम के नहीं है, जो भी हमारे काम का नहीं है जीवन में, उसका अपरिग्रह कर दें। ये योग का बहुत ही मूलभूत सिद्धांत है कि जीवन में उन्हीं वस्तुओं का संग्रह करें जो कि उपयोगी है, या उन्हीं लोगों का भी संग्रह करें जो हमारे जीवन को सुंदर रूप दें। तो ये दूसरा पॉइंट हमें अग्रवाल सर ने आज दिया। तीसरा पॉइंट आज अग्रवाल सर ने हमें बताया कि लक्ष्मी 3 रूपों में आती है, और ये हमारा चुनाव होता है कि हम लक्ष्मी को किस रूप में पूजें और किस रूप में स्वीकार करें। उन्होंने बताया लक्ष्मी के 3 रूप हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतगुण। तमोगुण में लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के आती है, जिसमें जितने भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, आलस हो, बीमारियां हो, उनको लेके आती हैं। जब भी हम अपना धर्म को छोड़ के तमोगुण अपनाते हैं, गलत प्रवृत्तियां अपनाते हैं, तब हम तमोगुण को से पूजित लक्ष्मी को अपने घर लेके आते हैं, जिसका एंड जो रूप आता है वो बहुत ही खराब आता है। दूसरा, अग्रवाल सर ने बताया हाथी रूप में जब लक्ष्मी आती है तब हमें हमारी लक्ष्मी पे बहुत अहंकार हो जाता है, और अहंकार अपने आप में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को बनाता है और हमारे सारे एक्शंस नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाते हैं। और तीसरा रूप जो अग्रवाल सर ने कहा कि हमें लक्ष्मी को लाना है, तो सतगुणी रूप में, कमल रूप में पूजित, यानी खूब मेहनत करके, खूब सुदर्शन चक्र चला के हमें लेकर आना चाहिए, खूब मेहनत करके अपने पॉजिटिव एनर्जी से लेके आनी चाहिए, ताकि वो हमेशा हमारी लाइफ में स्थायित्व लेकर रहे और हमको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करे और सही दिशा प्रोवाइड करे। और लास्ट, मैं चाहूंगी कि सभी लोग इस कबीर के दोहे को मेरे साथ गुनगुनाएं जो अग्रवाल सर ने हम सबको आज दिया है, बहुत ही प्यारा सा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। थैंक यू सो मच गुरुजी, अग्रवाल सर, आज आप लोगों ने इस पूरे पॉडकास्ट को इतना सुंदर रूप दिया। मैं सभी श्रोतागणों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आज की ये मेमोरी हम लोग के मानस पटल पे अंकित हो जाए। आप लोग प्लीज अपनी वीडियोस 30 सेकंड्स के लिए ऑन कर लीजिए और मुझे एक प्यारी सी स्माइल नमस्कार मुद्रा में दे दीजिए, ताकि हम लोग इस पॉडकास्ट की स्मृति को अग्रवाल सर के साथ, गुरुजी के साथ हमेशा के लिए अपने जीवन में अंकित कर लें। सभी श्रोतागणों से रिक्वेस्ट है, please join us with videos on, so we can take a very beautiful screenshot with Guruji and Agarwal sir for this beautiful podcast. Can I see a beautiful namaskar mudra with everyone?
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जल्दी ही हम रितंभरा से और पॉडकास्ट हम लोग लॉन्च करेंगे, डिजाइन करेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे रितान्वेशी की ओर से अग्रवाल सर को कि वो हमें फिर से ज्वाइन करें, फिर से हमें अपने ज्ञान से हमें प्रफुल्लित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। मैं लास्ट में गुरुजी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। गुरुजी, आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग जुड़े रहे, और मैं आप लोग के साथ बड़े बड़े महानुभावों को, महात्माओं को आपके समक्ष लाता रहूंगा। संडेज विथ योगीराज में सुबह 7 बजे आप आते रहे, और हम लोग इसी प्रकार से ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपने जीवन को धन्य करते रहे। नमस्कार। धन्यवाद सभी को प्रणाम। हरिओम। हम लोग जल्दी मिलेंगे सभी। प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।